Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario based on asset recognition with a major topic on English 41 regarding recognition of biological assets. So let us see that are given in this scenario. So we are given that ABC Limited is into dairy farm business. Cows are milked on a daily basis, and after milking, milk is immediately kept in cold storage, and milk is sold to retail distributors on a weekly basis. So on 1st April of current financial year, ABC Limited had 500 cows, which were all 3 years old. Then during financial year, some of the cows became sick, and on 30th September of current financial year, 20 cows died. And on 1st October of current financial year, ABC Limited purchased 20 replacement cows from the market for rupees 63,000 each. So these 20 cows were all 1 year old when they were purchased. So on 31st March ending current financial year, so ABC Limited had 1,000 liters of milk in cold storage, which has not been sold to retail distributors. Market price of milk on 31st March was rupees 60 per liter, while selling the milk to distributor will incur selling cost of rupees 3 per liter. So these amounts did not change during March ending current financial year, and are not expected to change during April next year also. तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट टू सेल ये गिवन बिलो. अब आपको डिफरेंट डेट से इन्फॉर्मेशन दी है एज इन 1st अप्रैल, 1st अक्टूबर एंड 31st मार्च ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. फेयर वैल्यू ऑफ ए डेयरी काउ एज 1 year, 1.5 year, 3 year, 4 years are given, and the cost to sell on different dates are also given. So you can assume that the fair value of 3.5 year old cow as on 30 September is 81,000. अब इसके बेस पर आपके डिफरेंट MCQ हैं. So now we have first MCQ. So we have to determine loss on death of cows on 30 September of current financial year. तो सबसे पहले आपको डिटर्मिन करने हैं कि जो काउस है जिसकी डेथ हो रही है 30 सितंबर को, उससे आपको कितना लॉस हो रहा है. So it means we have to determine in first MCQ. So we have to determine on 30th September of current financial year how much is our loss ड्यू टू डेथ ऑफ काउज. तो अब ये जो काउज थी आपकी, तो ये थी आपकी 3 years ओल्ड जो बिगनिंग में थी, तो उसकी को आपकी बुक्स में कितनी वैल्यू थी उस टाइम. एज इन 1st अप्रैल 3 year ओल्ड काउ की वैल्यू 81,000, ये फेयर वैल्यू है, एंड कॉस्ट टू सेल है आपकी 3,000. तो इट मीन्स इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी, तो दिस इज गिवन टू अस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन 1st अप्रैल of current financial year. So this one was our 81,000 minus 3,000. So this value was 78,000. ये आपकी बुक्स में वैल्यू थी. तो इट मीन्स अब आपने जो बुक वैल्यू है उसको डी रिकॉग्नाइज करने हैं, तो ये आपका लॉस बन जाएगा. तो वी कैन से कि अगर एंट्री बन जाएगी लॉस ऑन बायोलॉजिकल एसेट, जो आपका P&L में चार्ज हो जाएगा टू बायोलॉजिकल एसेट. एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी आपकी बुक्स में. तो दिस इज हाउ मच आपको मेंशन किया है. 20 काउस जो हैं जिसकी डेथ हो गई है, सो 28 काउस इंटू 78,000 इसकी फेयर वैल्यू थी लेस कॉस्ट टू सेल. तो ये आपका जो है टोटल लॉस आ जाएगा 78,000 इंटू 20, जिसे जो 15,60,000. तो आप लैक्स में भी दे सकते हैं आंसर. तो रुपीज़ 15,60,000. तो ये आपका आंसर है फर्स्ट MCQ में. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. So next we have second MCQ. There are shown determine cost of biological assets new cows which are acquired on 1st October. अब आपने जो नई काउस एक्वायर की हैं उसकी कॉस्ट कितनी है. सो कॉस्ट ऑफ न्यू काउज एक्वायर्ड ऑन 1st October ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. तो आपको इसको मेंशन किया था that we have purchased 20 replacement cows from market at 63 each, but these 20 cows were 1 year old when they were purchased. तो इनकी जो एज थी दिस वाज 1 year. अब 63 की आपकी वैल्यू थी, बट आपको ये भी मेंशन किया है एज इन 1st अक्टूबर जो आपकी ये काउ हैं 1 year old, उसकी जो कॉस्ट टू सेल है वो है 3,000. तो इट मीन्स आपकी एंट्री बन जाएगी इस केस में जब आप एक्वायर करेंगे बायोलॉजिकल एसेट, जिसे काउज अकाउंट
और जो आपके एक्सपेंसिव हो रहे हैं जब आप एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब जो कॉस्ट टू सेल है आपकी 3000 है, वो आपका लॉस माना जाएगा। तो इट मीन दिस इज ए लॉस ऑन एक्विजिशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। तो उसको आप उसमें एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं कर सकती हैं टू बैंक अकाउंट, पर पेमेंट आपको करनी है फुल अमाउंट से 63 से। तो इट मीन्स लेटर से टोटल वैल्यू है आपकी 20 इंटू 63,000। तो हाउ मच इज दिस वैल्यू? 63,000 इंटू 20। टोटल पेमेंट आपने की है 12,60,000। अब जो आपका लॉस हो रहा है दिस विल बी 3,000 इंटू 20, दिस इज 60,000। इतनी जो कॉस्ट हमने रिकॉग्नाइज करनी है वो आ जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दिस इज 12 लैक्स। क्योंकि 63 की जो आपने पेमेंट की है वो फेयर वैल्यू की, बट आपकी कुछ लेस कॉस्ट टू सेल भी हमने लेस करके वो हमारा लॉस माना जाएगा। तो इतनी आंसर क्या है आपका? गैर आस्किंग वट इज कॉस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट से जो नई काउ हैं आपने एक्वायर की हैं वो है आपकी 12 लैक्स। So our answer is rupees 12 lakhs. Now you can see, so which option is correct? This is option number C is correct. Third MCQ is asking, determine gain or loss due to price change on biological assets as on 31st March for current financial year ending. तो आपने देखना है कि कितना गेन या लॉस हो रहा है आपको, गेन और लॉस। नंबर 1 है ड्यू टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज में हम जो एज होती है अपनी बायोलॉजिकल एसेट की वो सेम रखते हैं बाय द एंड ऑफ ईयर ड्यू टू प्राइस चेंज, दिस इज एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसमें देखो एक सेम रखनी है। बिगनिंग में आपके पास एक काउस थी 500 जिसमें से 20 की डेथ हो गई है, इनकी लाइफ की 3 ईयर्स। तो फर्स्ट वी हैव 3 ईयर, तो ओल्ड काउज। फिर अपनी नई काउस एक्वायर की थी, सो उनकी एज थी उस टाइम 1 ईयर। फिर आप लीजिए 1 ईयर ओल्ड काउस। तो आप चेक करो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है 31 मार्च को 3 ईयर ओल्ड काउ की। ये आपको देखो मेंशन की हैं। सो 3 ईयर ओल्ड काउ उसकी जो फेयर वैल्यू है एज ऑन 31 मार्च जिसे 87,000, 87 माइनस उसके 3300 के एक्सपेंसिव हैं वो माइनस कर दो आप। सो दिस विल बी 87,000 माइनस 3300, सो दिस विल बी 83,700। ये इसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। ईयर की बिगनिंग में कितनी वैल्यू थी आपकी फॉर 3 ईयर काउ की, ये आपको दी है 81,000 माइनस 3,000 इसकी कॉस्ट टू सेल की। इट मीन्स ये थी आपकी 78,000। इनको नंबर ऑफ काउस हैं अब आपकी जिससे जो 480 रह गई हैं। 500 की उसमें से 20 की डेथ हो गई है। फिर 20 काउस आपकी हैं 1 ईयर ओल्ड। तो 1 ईयर ओल्ड की देखो फेयर वैल्यू 31 मार्च को कितनी है अब आपकी 64,500 माइनस 3300 लेस कर लीजिए, इसकी जो कॉस्ट टू सेल है ये रह जाएगी आपकी 61,200, जिसे कि 61,200। और जब आपने एक्वायर की गई उस टाइम इसकी वैल्यू थी आपकी एज ऑन 1 अक्टूबर जिस वाज 60,000 जो आपने रिकॉग्नाइज की है बुक्स में इनटू जिसे 20। तो दोनों में हमें गेन हो रहा है इसमें। तो हाउ मच इज गेन ड्यू टू प्राइस चेंज? सो नंबर 1 इज अवर जिसे 5700 इंटू 480, जिसे जो 27,36,000। दूसरे केस में आपको गेन हो रहा है जिसे 1200 इंटू 24,000। इतनी टोटल गेन ड्यू टू प्राइस चेंज इज अवर 2736 प्लस 24 27,60,000। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपका टोटल गेन है 2760, ऑप्शन ए इज करेक्ट। So next we have 4th MCQ. They are asking determine gain or loss due to our physical change in biological assets as on 31st March for current financial year ending। अब आपको फिजिकल चेंज के कारण देखना है कितना गेन या लॉस है, जिसे MCQ नंबर 4th। तो हाउ मच इज अवर गेन और लॉस ड्यू टू फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है आपका ड्यू टू इंक्रीज इन एज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। अब जो 3 ईयर की काउ थी आपकी 1 ईयर है वो, अब उसकी एज हो जाएगी 4 ईयर। तो इट मीन्स पहले लेके हैं अब 3 ईयर तो ओल्ड काउज जिसकी एज होगी अब 4 ईयर। अब आप देखो जो 4 ईयर की काउ है उसकी 31 मार्च को कितनी वैल्यू है वो आपको दी है 79,500 माइनस का जो कॉस्ट टू सेल 3300। सो दिस विल बी अवर 76,200। अब इसकी नई वैल्यू होगी है 76,200।
तो पहले आपने इसको प्राइस के बेस पे इसकी वैल्यू ली थी 83,700, तो इट मीन्स फिजिकल चेंज के कारण आपको लॉस हो रहा है, दिस इज योर लॉस इनटू 480। फिर आप देखिए 1 ईयर रोज का हो, ये आपने एक्वायर की थी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च को 6 मंथ्स और ऐड हो जाएंगे इनकी एज में, तो ये बन जाएगी 1.5 ईयर। तो आप देखो 1.5 ईयर जो काउ है उसकी 31 मार्च की वैल्यू है 70,500, कॉस्ट टू सेल है 3,300, तो उसकी वैल्यू रह जाएगी 67,200, जिस इज 67,200। इसको कंपेयर करो, पहले इसकी वैल्यू लेके आपने आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस 61,200, तो इसमें आपको गेन हो रहा है इनको जिस इज 20, तो इसमें नेट आपका लॉस आ जाएगा ड्यू टू फिजिकल चेंज। तो फर्स्ट केस में आपका लॉस आ रहा है 83,700 माइनस 76,200, सो इनटू 480, दिस इज 36 लाख, ये आपका लॉस है। और इसमें आपको गेन हो रहा है, सो जिसमें नहीं जबर 6,000 इनटू 20, तो नेट गेन है आपका 120। तो फाइनली नेट लॉस रह जाएगा आपका, ब्रैकेट में ले देते हैं इसको, रुपीज 36 लाख माइनस 20, 34,80,000। So now you can see which option is correct. So answer is option number C is correct. So next we have fifth MCQ. Now we are asking determine value of inventory of milk as on 31st March. तो मिल्क जो है वो आपका इन्वेंट्री माना जाएगा। So let us see what is the value of milk. दिस इज अवर इन्वेंट्री। इसको वैल्यू की कीजिए एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसकी फेयर वैल्यू आपको जो मेंशन किया है 60 रुपये, कॉस्ट टू सेल है आपकी 3 रुपीज़ और टोटल क्वांटिटी आपकी 1000 लीटर्स है। सो दिस वैल्यू विल बी 1000 इंटू 60 माइनस 3, सो टोटल वैल्यू विल बी रुपीज़ 57,000। आपकी मिल्क की वैल्यू आ जाएगी विच इज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। So you can see which option is correct. So in this case, this is option B. So next we have sixth MCQ. They are asking determine net profit or loss for current financial year to be charged to P&L account as on 31st March. तो आपने डिटरमिन करना है सो नेट प्रॉफिट और लॉस कितना है आपका, दिस इज फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च। तो उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं P&L अकाउंट की स्टेटमेंट बना लीजिए। अमाउंट्स हैं रुपीज़ में, तो आप देखिए जो आपको गेन हो रहा है इसमें, तो लेके से ये बता रहे गेन्स और क्या क्या आपके लॉसेज हैं या एक्सपेंसिव हैं। तो गेन्स में तो आपको देखो जो आपका प्राइस में चेंज आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई नया वर्क भी नहीं है, सिर्फ आपने प्राइस चेंज निकाला था, दिस इज अवर गेन ड्यू टू प्राइस चेंज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा था, उसमें हमने गेन कैलकुलेट किया था 27,60,000। सेकंड गेन हो रहा है आपको जो इन्वेंट्री हमें रिकॉग्नाइज करेंगे, मिल्क आपको मिल रहा है तो किसी वैल्यू ऑफ मिल्क, ये भी आपका गेन बन जाएगा एज इन्वेंट्री जिसे 57,000। तो इट मीन्स वी आर टोटल गेन्स 28,17। फिर आपने देखने हैं आपके लॉसेज या एक्सपेंसिव कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो डेट हो रही थी आपकी 20 काउस की, उसके कारण जो लॉस हो रहा है जिसे जो लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ काउज। फिर लाइक ये हमने सबसे पहले MCQ में कैलकुलेट किया था, कितना लॉस था आपका 15,60,000, तो ये आपका लॉस था इसमें 15,60,000। फिर जो अपनी नई काउस एक्वायर की थी उसमें जो हमारे एक्सपेंसिव हुए थे वो भी लॉस था हमारा, लॉस ऑन परचेज ऑफ 20 काउस। ये आपको लॉस हो रहा था 3,000 जो एक्सपेंसिव के एक बार की 60,000। फिजिकल चेंज में हमने निकाला था उसमें लॉस हो रहा था आपको लॉस ड्यू टू फिजिकल चेंज, जिस यू कैन सी। तो ये हमने लॉस कैलकुलेट किया था 34,80,000। ये सभी आपके लॉसेज हैं। तो इट मीन्स लेट अस सी व्हाट इज टोटल लॉस 1560 प्लस 60,000 प्लस 34,80,000। सो टोटल जो लॉस है अब आपका जिसमें निकली 51 लाख। इट मीन्स फाइनली आपका नेट लॉस आ जाएगा। सो दिस इज नेट लॉस टू बी चार्ज टू P&L। तो 51 लाख माइनस 28,17। तो फाइनली आपका नेट लॉस आ जाएगा 51 लाख माइनस 28,17, दिस इज 22,83,000। So now you can see which option is correct. Answer is option B.
अमाउंट आपके रुपीज़ में है, so this is our net loss. Again we have seventh MCQ. Now we are asking determine carrying amount of biological assets as at 31st March year ending current financial year. तो आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू कितनी है, विच इज कहा गया कैरिंग वैल्यू, तो विच इज आल्सो कहा गया कि बुक वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स. सो दे आर आस्किंग ओनली फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स, सो एज एट 31st मार्च. अब इसमें दो एसेट्स आपकी चल रही हैं, एक 3 ईयर्स ओल्ड काउ थी बिगनिंग में, उसकी एज हो गई है 4 ईयर ओल्ड काउ, और जो आपने नई काउ परचेज की थी 1 ईयर की 1 अक्टूबर को, अब उसकी एज हो जाएगी 1.5 ईयर, तो जिसे 1.5 ईयर ओल्ड काउ. ये है आपके पास 480 काउस, दीज आर 20. अब इसकी देखो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है एज ऑन 31st मार्च. तो जो 4 ईयर ओल्ड काउ है ये है आपकी 79,500 माइनस कर को कॉस्ट टू सेल 3,300, तो ये रह जाएगी आपकी 76,200. ये इसकी फेयर वैल्यू आ गई लेस कॉस्ट टू सेल. ऐसे जो 1.5 ईयर ओल्ड काउ है उसकी क्लोजिंग वैल्यू है 7,500 माइनस कर को 3,300, जिस इज 67,200. So this will be our carrying amount. So like I see total is 480 into 76,200. This is 365 lakh 76,000 and plus so 20 into 67,200. This is our 13 lakh 4,000. So total carrying value is our rupees 379,20,000. ये आपने बैलेंस शीट में शो करनी है वैल्यू बायोलॉजिकल एसेट एज ऑन 31st मार्च, which is called carrying value. So now you can see which option is correct. So answer is option A is correct. So in this lecture we discuss a case scenario based on Ind AS 41 regarding recognition of biological assets. फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.